So I am sharing the screen here regarding to this. You just need to see that and write down has to, have to, had to, and will have to. That is the topic. Yes, sir. There is some little bit. Before that, before discussing that, let me share you one more thing. I think, ma'am, you have clear concept about this. Yes, sir. Sharing you right now. Okay. Is screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Here is evening is going on. So right now, it's made like a good morning. Okay. You have to read and answer me back. Before starting today's class, we will have 5 sentences here for testing your English knowledge. And if you don't know that particular answer, don't worry about it. Just you need to write it down. Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Don't worry about what is right sentence and what is wrong sentence. You just focus on what you have in your mind. Okay. Just Facebook also says what's on your mind. So just share that particular knowledge. Make these sentences according to your mind. Okay. First सर रिटर्न sentence. करना है No, only answer. अच्छा You have a screen in front of you, right? यस सर I'm giving you 5 minutes for 5 sentences. First sentence वह उदास क्यों हो रहा है? Try this sentence, everyone. Why is she getting upset? why he becoming sad Try these 5 sentences. Then I will. Why she is getting upset? Second, third, fourth, fifth. 5 sentences also. After that, we will check together. सेकंड मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है क्या तुम इस बार पास हो जाओगे एंड द फोर्थ वन इज मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है एंड द फिफ्थ वन राम ठीक क्यों नहीं हो सकता है दीज आर दी सिचुएशंस यस नीलम मैम वह उदास क्यों हो रहा है व्हाट इज योर सेंटेंस Why she is getting upset? रहा है Why he is getting upset? व्हाई ही इज और व्हाई इज ही Why uh, टाइप 5 why is he? Why is he getting upset? upset or we can say sad right Yes, yes, sir. okay Ajay sir what is your answer why is he getting upset why is he getting upset Meenakshi ma'am what's your answer So first वाले का yes वह उदास क्यों हो रहा है? Why he is getting upset? why he is नहीं होता why is he होता है Why? right Yes, sir. Yes, sir. okay टाइप 5 की प्रैक्टिस करेंगे तो why am I why are we why are you why are they why is he okay the right sentence is why is he getting sad or you can say why is he getting upset both are right okay so you can give 1 mark to you
if you have made it honestly. The second, मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है. Make this. मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है. Who is speaking to I- begin with? I have to gone for reading and writing English. Sorry, uh, speaking and writing English. I have to gone for uh, speaking and writing English. Anybody else? I have to learn uh, speaking and writing English. No. Hmm. Okay, third one. Try the third one. Yes, sir. Will you? Will you become pass this time? Okay. Fourth and fifth one, any option? जी इंटरव्यू में select होना है. Wait, sir. I have to select an interview. I have to select an interview. Yes, sir. Okay. Apply your mind. Meenakshi ma'am, are you also trying? सर फिफ्थ वाले का होगा why Ram not have why Ram have not too well. Why Ram have not too well. Okay. So may I tell the right answer of all these? Yes, sir. This was a test of 5 marks. How many marks? 5 marks. So how many marks will you give yourself you after knowing the right answer? Okay. Write down the first answer. Why is he getting sad or upset? Both are right. 1 mark is done. Yes, sir. The second, मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है. कितनी बार नानी ने आ रहा है इसमें? बोलना, लिखना, सीखने जाना. Okay. So write down the right answer. I have to go. Hmm. I have to go to To. learn. Hmm. I have to go to learn to speak and to write English. I have to go to learn to speak and to write English.
ओके, सर आधा सही हो तो आधा मार्क्स दे सकते हैं। बिल्कुल। Hmm. यू आर द एग्जामिनर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद अपने एग्जामिनर, कोई बाहर से आदमी परीक्षा करने नहीं आ रहा है, राइट? यस सर। आप चाहे तो 5 आउट ऑफ 5 भी दे सकते हैं। नहीं नहीं सर। ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? आई आई हैव हैव टू गो टू टू लर्न लर्न टू टू स्पीक स्पीक एंड टू राइट इंग्लिश। इंग्लिश। क्लियर? यस सर। द थर्ड वन, क्या तुम इस बार पास हो जाओगे? इट्स अ सिंपल फ्यूचर टेंस। टाइप 3, विल यू will you get passed? PASSED, will you get passed this time? will you get passed this time? अभी गेट का रूल आपको समझाया नहीं है, तो पास्ट क्यों आया? ये गेट की वजह से आया है, राइट? वो भी समझाऊंगा मैं आपको। व्हाट इज सर द ये परफेक्ट आंसर? परफेक्ट में नहीं जाएगा क्या सर? पास हो जाओगे, नहीं, फ्यूचर परफेक्ट। इट्स अ सिंपल फ्यूचर अगले गेट, और गेट के बाद कोई वर्ब आती है उसका तर्जुमा करते हैं, दैट इज द रूल। ओके, सो सर विल यू आवाज गेट, आवाज सर आपकी थोड़ी वो ऐसे हो रही है। ब्रेक हो रही है? यस सर। वो दब जाती है बीच बीच में। अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है सर। ओके, थर्ड वाले का होगा, क्या तुम इस बार पास हो जाओगे? तो विल यू गेट पास्ड? दिस PASSED, पास्ड दिस टाइम। एग्जाम। यस सर। एंड द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार, और दिस टाइम मतलब इस इस बार। बार। इस बार। ओके, और लास्ट टाइम मतलब पिछली बार। दीज आर 3 सेंटेंसेस। मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है। आई हैव टू गेट आई हैव टू गेट सेलेक्टेड इन इंटरव्यू। आई हैव टू गेट selected in interview. Okay, clear? यस सर। राम ठीक क्यों नहीं हो सकता है? Why can't Ram get well? Why can't Ram get well? अब अगर इसे टेस्ट लिया जाता तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, अजय सर? यस सर। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे सर 1 मार्क्स आया। 1 मार्क आया। हाफ एंड हाफ। ओके, मैम? सर 2.5। 2.5। मीनाक्षी मैम? So two. 2। तो अब आपको इसका रीजन पता होना चाहिए, तो इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज द ऑल। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। रीड दिस। क्या आप जानते हैं कि इतनी कोशिश मेहनत करने के बाद भी आप आज तक इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए? बताएं, व्हाट इज रीजन? चेक इन नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि का तरीका Process was wrong. गलत योर था। टेक्निक वाज Wrong. रॉन्ग। रॉन्ग। ओके, दैट्स व्हाई। कैसे? लेट्स चेक इट आउट। गो मतलब क्या होता है? जाना। यस, आई हैव मेंशन इन दैट पर्टिकुलर। मीनाक्षी मैम, गो मतलब क्या होता है? Sorry. गो मतलब क्या होता है? गो, Go मतलब जाना. ठीक है, जा। जाना नहीं होता है। ओके, टू गोस बाय जाना। नेक्स्ट, कम मतलब क्या होता है? आ। आना, आना. ये भी गलत है। ठीक है, सिट मतलब क्या होता है? वेट। बैठना, ये भी गलत है। ठीक है, ईट मतलब क्या होता है? खा। खाना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ड्रिंक यानी पीना, पी। रॉन्ग। प्ले खेलना, रॉन्ग। अब आगे देखो,
गो यानी जाना नहीं होता, ईट यानी खाना नहीं होता, कम यानी आना नहीं होता, ड्रिंक यानी पीना नहीं होता, सिट यानी बैठना नहीं होता, प्ले यानी खेलना नहीं होता। ओके, तो क्या होता है? ये सर नाना लगा हुआ है ना, जो गलत है। टू टू लगेगा। गो मतलब जा, तो मतलब क्या होता है? जाओ, जैसे जाओ। तो मतलब होता है जाओ। कैसे? मान लो क्लास खत्म हो गई, राइट? आप मान लो सपोज करें क्लास ले रहे हैं और क्लास आपकी खत्म हो गई, तो आपने स्टूडेंट को क्या बोला? गो। क्या बोला? गो। 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 तो जाओ। इसका मतलब जाओ, जाना तो नहीं जाना। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? आप जाइए, हम्म। राइट? तो अब आपने गो यानी क्या सीखा हुआ है? जाना। हम्म। कब यानी आओ। आना। आओ। लेकिन होता है क्या? आओ। सीट यानी, हम्म। सीट यानी बैठो, बैठो। 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 ईट यानी खाओ, खाओ। ड्रिंक खाओ। यानी पियो, पियो। प्ले यानी खेलो। 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 ओके, व्हेन यू वेंट फर्स्ट डे इन द स्कूल, और आपको सिखा दिया क्या? गो यानी जाना, जाना। कम जान। यानी आना, आना। सीट यानी बैठना, ईट यानी खाना। जबकि आपका जो फाउंडेशन है ना बिल्डिंग का, वो फाउंडेशन ही रॉन्ग टेक्निक से, राइट? तो अब आपको क्या करना है? अगर आप बोलोगे जाना लगोगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, राइट? गो जाओ, ईट खाओ, कम आओ, ड्रिंक पियो, सीट बैठो, प्ले खेलो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर जाओ, जाओ हो तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए आप। टू गो। टू क्या गो। कहेंगे? गो टू यानी गो। जाओ होता है, लेकिन अगर यानी गो यानी जाओ होता है तो जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मीनाक्षी मैम? टू गो। टू गो, राइट? तो हम जनरली टू गो। गो यानी जाना नहीं होता, जाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाना को कहते हैं टू गो। इज दैट क्लियर? यस टू सर। गो। मुझे जाना है तो कैसे इंग्लिश बनेगी? मुझे जाना है, आई हैव आई टू। हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे खाना बनाना है, आई हैव। आई हैव टू मेक फूड। आई हैव टू कुक फूड, या आई हैव टू मेक फूड। इज दैट क्लियर? ये नानी का रूल, दैट इज द रूल ऑफ नानी ने। अभी आप सेकंड वाला सेंटेंस जो आपने बनाया ना, उसमें देखो, मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है। जितनी बार नानी ने आता है उतनी बार इंग्लिश में टू लगाया जाता है, राइट? अच्छा। तो नानी ने का नियम ये कहता है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के पीछे नानी ने आता है तो उसकी इंग्लिश में टू लगाया जाता है। ओके, जैसे आप गैजेट भी यूज करते हैं, टू गो बैक, इस तरह से लिखा आता है, राइट? टू को पीछे जाने के लिए, हम्म। हम्म। राइट? टू स्किप, स्किप करने के लिए। तो नानी ने के अर्थ में आपको टू लगाना है। जैसे कल सिंस फोर पढ़ा तो सिंस टाइम के आगे लगता है, वैसे टू नानी ने को इंडिकेट करता है इंग्लिश के अंदर। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर। I I hope that you have cleared the confusion regarding to this. See, जाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू टू गो। आना, टू टू कम, कम। बैठना, टू सिट, बोलना, टू टू स्पीक। स्पीक। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव आई टू टू स्पीक स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश। राइट? तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आप बनाओ, स्ट्रक्चर काम करेगा हैज टू हैव टू वाला। आई हम्म। हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, और इसमें पीछे टू लगेगा, राइट? आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है, राइट? आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। और अगर सिंगुलर होगा तो शी हैज टू हो जाएगा। क्या होगा? शी हैज टू। हैज टू। तो लिखिए एक सेंटेंस, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और उसे जाना है, शी हैज टू गो। दोनों सेंटेंस लिखिए, फिर हम प्रैक्टिस लेते हैं। क्लियर? मुझे जाना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो।
देखो, हैव क्या इंडिकेट कर रहा है? फाउंडेशन। ना मतलब टू, जाना। आई हैव टू गो। क्लियर? यस सर। दैट्स व्हाई इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सेंटेंस बनाते हैं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इंग्लिश बोलना नहीं निकलता वहां पे, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। दैट इज द मेन पॉइंट। क्लियर? वॉइस क्या ब्रेक हो रही है? सर Sometime. समटाइम। Sometime because network issue in that room. Hmm. ओके। सो अब अपनी वो जो बुक है उसमें ढूंढो हैज टू हैव टू वाले सेंटेंस कहाँ है। विल प्रैक्टिस दैट। हरी अप आफ्टर 143। चेक इट आउट। देखो, एक सेकेंड, सी ऑन द स्क्रीन। टू मतलब इंग्लिश में होता है, तो इसका हिंदी क्या होता है? या तो ना हो सकता है, या नी हो सकता है, या फिर ने हो सकता है। राइट? Yes, sir. स्क्रीन पे चेक करो, क्या इंग्लिश बनेगी? आई फास्ट। हैव टू So voice आई to हैव टू, गो। आई हैव टू गो। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बताएं। मुझे आना है, I have to come. आई हैव टू कम। आई हैव टू कम। गुड। नेक्स्ट, मुझे दूध पीना है, I I have have to drink milk. ड्रिंक आई मिल्क। हैव टू ड्रिंक मिल्क। देखो, इसमें नानी ने कितनी बार आ रहा है सेंटेंस में? एक बार आ रहा है। तो हम कितनी बार टू लगा रहे हैं? एक एक बार. बार। दो बार नानी ने आए तो दो बार टू लगाना है, 10 बार आए तो 10 बार लगाना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मुझे दूध पीना है, क्या सेंटेंस बना? आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। देखो, ना को अंडरलाइन कर रहा है, ना के लिए टू लगा है। क्लियर? यस सर। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे अंग्रेजी बोलनी, ना की जगह नी आ जाए तो भी टू लगाना है। लिखिए सेंटेंस को, मुझे अंग्रेजी बोलनी है। I मुझे have अंग्रेजी, अब देखो यहाँ पे ना नहीं आ रहा, नी आ रहा है, तो भी आपको क्या लगाना है? टू। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको किससे पूछना है कि आपको इंग्लिश बोलनी है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? टाइप 3 में। अगर आपको मेरे से पूछना है कि क्या आपको अंग्रेजी बोलनी है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू हैव बोलनी है। डू यू हैव टू। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। ठीक है? hmm. क्लियर? यस सर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। ना आया तो हमने क्या लगाया अजय सर? व्हाट सर। ना आया तो टू लगाया, नहीं आया तो भी टू हमने क्या लगाया लगाया? टू तो लगाया। भी टू लगाया नहीं आया अब तो। देखो आगे, मुझे अंग्रेजी सीखनी, क्या बनेगा? I have to learn English. आई हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश। English. ओके। नेक्स्ट, मुझे आम खाने हैं। ना नी, अब क्या किसका एग्जांपल है? ने का। ना है तो भी टू लगाया, नी था तो भी टू लगाया, ने है तो भी आपको टू लगाना I है। have to eat mango. आई हैव टू ईट मैंगो। अच्छा, ना वाला कौन सा एग्जांपल लिया था हमने? मुझे जाना है, तो उसमें ना आया था। नी वाला कौन सा लिया था? मुझे अंग्रेजी बोलनी है। बोलनी है, तो भी हमने टू लगाया था। मुझे आम खाने हैं, ने आ रहा तो भी आप क्या लगाएंगे? टू। व्हाट विल बी द सेंटेंस? आई हैव टू ईट मैंगोस। Mango. क्लियर? तो इंग्लिश में ना हो, नी हो, ने हो, सबके लिए क्या लगता है? टू। इज दैट क्लियर? यस Hmm. सर। ओके, बताएं फास्ट। तो सर ये एक्शन ही होगा ना, मतलब जिसके हम्म। टू आगे लगेगा तो एक्शन ही होगा ना हाँ, कोई। एक्शन ही होगी। नाउन। टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, ठीक है? मुझे दो पत्र लिखने हैं। I have to write two Two letters. letters. टू लेटर्स। आई हैव टू Hmm. राइट टू Two Two letters. लेटर्स। ओके। ये सब आप क्या बता रहे हैं पता है? नानी ने का नियम में आप मजबूरी बताते हैं। क्या बताते हैं? Compulsion. मजबूरी। कंपल्शन, यानी कि बाउंडेशन, कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। Hmm. अगर वो नहीं करेंगे तो लॉस हो जाएगा। Hmm. ठीक है?
उस सेंस में आप नानी ने का यूज करते हैं, यानी कि टू का रूल चलता है इसमें इंग्लिश में। ओके, द ट्रांसलेशन इज आई हैव टू राइट टू Two लेटर्स। letters. टू लेटर्स। ठीक है। आप चाहे खुशी खुशी करो चाहे रो के करो। हाँ, चाहे आप उसको खुशी खुशी करो, चाहे आप, ये आपको करना है, यू हैव टू डू इट। क्लियर? हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशल जॉब वालों के लिए, हम्म है ना? ये आपको करना ही है। चलिए, अब अभी हमने जो सेंटेंस लिए थे उसमें नानी ने कितनी बार आ रहा था? एक बार। एक बार। अब इस सेंटेंस को आप नोटबुक में नोट करें। मुझे क्रिकेट खेलने जाना, ने भी आ रहा है, ना भी आ रहा है। I एक have बार नानी ने आया तो हमने एक बार टू लगाया था। अब यहाँ टू गो। एक I से ज्यादा बार आ go रहा to play cricket. है। क्या बनेगा? I have to go to play cricket. आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट, यानी जितनी बार नानी ने आएगा उतनी बार आप टू लगाए। क्लियर? सर इसमें ऐसा हो, आई हैव टू गो फॉर प्ले क्रिकेट। नहीं, वो के लिए लगाना पड़ेगा फिर, खेलने के लिए। तो सर मतलब जैसे अपन अगर हिंदी से ट्रांसलेट नहीं करे और अगर अपन को खाली ये फीलिंग बतानी है कि हाँ, मुझे फीलिंग का क्रिकेट, बता सकते, फीलिंग बता तो सकते हो। फोर भी सही है ना? हाँ, वो भी सही है। फोर, फोर के बाद प्लेइंग आएगा सर। प्लेइंग, फॉर प्लेइंग। प्लेइंग आएगा, हाँ फोर के बाद आईएनजी यूज होता है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब ऊपर नोट, आप जब नोटबुक में नोट कर रहे हैं वहां पे लिख लेना, नानी ने अंडरलाइन करना, दो बार आ रहा है तो दो बार आपको टू लगाना है। क्या सेंटेंस बना गया इसका? मुझे क्रिकेट खेलने जाना है तो आई आई हैव टू गो टू आई प्ले हैव क्रिकेट। टू गो टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट। तो मैंने वो उस वाले में जीरन वाला यूज किया था कि नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा मैम। हम्म, ठीक है, उसमें क्या बनाया था मैम आपने? एक सेकेंड, हाँ, लाइट हाँ। चली गई। मैंने उसमें एक एक्शन इसमें लिया था, टू हम्म। स्पीक, और फिर उसके बाद जो फॉर्म आ रही थी उसको आईएनजी में कन्वर्ट किया था। एक नहीं को इसके साथ लगा था और एक आईएनजी में कन्वर्ट करी थी। नहीं, ज्यादातर जो बाउंडेशन वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें हम्म यही रूल चलता है, जितनी बार नानी ने आया उतनी बार टू लगाते जाना है। हम्म। नहीं, वो ठीक है। जीरन में भी यही होता है ना कि हाँ, जिरंट एक, में सेंस वही होता है। हाँ, और एक आपको सेकंड फॉर्म है अगर तो उसमें आईएनजी यूज करना है। दो फॉर्म जब एक साथ आ गई है। हाँ हाँ, दो फॉर्म एक साथ आए तो बीच में या तो टू लगा सकते हो, या आईएनजी एक या के साथ नेक्स्ट वर्ब में first- आईएनजी ऐड कर सकते हम्म, मैंने वो चीज करी थी उसमें। हो। नहीं, इसमें स्पेशल बाउंडेशन में आपको टू ही लगाना है। हम्म ये स्पेशल टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। ऐसे कई सेंटेंस हम पूरे दिन में एक एक दो बार मजबूरी तो बता ही सकते हैं इंग्लिश में। बताते नहीं बता? यस सर, बताते बिल्कुल। सर। बहुत सारी मजबूरी हम बताते हैं कि यार मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू कुक फूड। मुझे सब्जी लेने जाना पड़ता है, लेने और जाना दो बार नानी ने आया है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? मुझे सब्जी लेने जाना पड़ता है, बताओ। आई हैव टू टू ब्रिंग आई हैव आई टू हैव गो। टू गो टू ब्रिंग वेजिटेबल हाँ, आई हैव टू गो टू ब्रिंग टू वेजिटेबल। वेजिटेबल। राइट। अभी आपको पता है, जब छोटा सा जब टेस्ट ले रहे थे उसमें एक सेंटेंस आया था सेकंड वाला, उसमें चार बार नानी ने आ रहा था, हम्म मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है। तो उसका यही रूल है कि आप जितनी बार नानी ने आता है उतनी बार आपको टू लगाना है। ठीक है। हम्म। चलिए, यस। कैन एनीवन टेल मी कौन कौन से सेंटेंस हमने अभी मजबूरी वाले लिए थे? मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। ईट ना वाला को, मैंगो, स्टार्टिंग में ना वाला कौन सा लिया था? ना वाला मुझे है मुझे जाना मुझे है। जाना है। आई हैव टू गो। गो। सेकंड नी वाला कौन सा लिया था? नी वाला, मुझे 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 अंग्रेजी बोलनी है। मुझे अंग्रेजी बोलनी है। I have to आई हैव टू speak English. स्पीक इंग्लिश। ओके। थर्ड वाला कौन सा लिया था? ने मुझे वाला, आम खाने हैं। मुझे मुझे आम आम खाने। आई हैव टू ईट
मैंगो। मैंगो। मैंगोस। फिर नानी ने 2 बार आया था, तो उसमें सेंटेंस कौन सा लिया था? मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। जो भी अभी स्क्रीन पे है, 2 बार वाला, राइट? हम्म। ओके। अब आगे चलते, 3 बार भी आएगा, 4 बार भी आएगा, नोट करते जाना, मैं लास्ट में पूछूंगा सब। ओके। यस। मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है। यस, मेक इट फास्ट। आई हैव टू गो टू I लर्न to learn it. इंग्लिश। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। ओके। नेक्स्ट। अब देखो 3 बार आ गया। 3 बार। राइट डाउन दिस सेंटेंस, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। आई हैव टू गो टू स्पीक। हम्म। आई I हैव to learn speak English. इधर हाँ। है। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। हैव टू गो। I have to go to learn to speak English. वेरी नाइस। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। राइट? ऐसे बोलते हैं, आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। राइट? सर चलो। हम्म। मतलब जैसे अपन टू लर्न टू इंग्लिश बोलते हैं, दो दो बार टू टू आ रहा है, तो हम्म। इससे तो सर लैंग्वेज और टफ बन गई। अपन यूं भी बोल सकते हैं आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। अब टू अगर नहीं बोलेंगे तो मतलब वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा ना। अच्छा। सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाएगा, अच्छा। लेकिन उसका ग्रामर बेस खत्म हो जाएगा। ओके सर। अभी तो 3 बार, अभी 4 बार आना बाकी है, रुको अभी तो। हाँ सर। अभी हम सिस्टम से चल रहे हैं। पहले सिस्टम में ना वाला एग्जाम्पल बताया, मैं सब पूछूंगा आपसे, फिर नी वाला बताया, फिर ने वाला बताया, फिर नानी ने 1 बार आया वो बताया, फिर 2 बार आया वो बताया, 3 में कौन सा सेंटेंस था, और अब 4 में आ रहे हैं, 4 में कौन सा है, ये भी बताना है आप। पिक्चर अभी बाकी है। ये वो सेंटेंस है जो टेस्ट में दिया था। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो क्या बना था आपका? आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब वो वाला सेंटेंस आएगा जो आपको टेस्ट में दिया। बनाए इसको। मुझे अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने जाना है, कितनी बार नानी ने आ रहा आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक टू राइट इंग्लिश। है? एंड भी आएगा उसमें। एंड हाँ, आई हैव टू आई गो आई हैव टू गो लर्न टू लर्न टू स्पीक एंड टू राइट राइट इंग्लिश। इंग्लिश। ये और वाला सबसे लास्ट में रखते हैं, राइट? ये जो और वाला पोर्शन सबसे लास्ट में जाता है। तो अब मुझे के लिए आपने आई लिया, तो आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक एंड टू राइट इंग्लिश। क्लियर? चलो, ये टॉपिक सर कंप्लीट। आप इतना जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हो सर, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। अभी लिखो ना, आगे स्क्रीन पे सर। सब है, लिखा हुआ बुक में है। हाँ सर। आपके पास जो बुक है ना, उसमें सब है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। आर यू रेडी? Yes, sir. Neelam ma'am will explain what we have discussed in this session with example. today's session. Yes. Uh, Yes, topic is have to. It is basically used in Just, firstly, I want you to look at the screen firstly. नानी ने का रूल है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में नानी ने आता तो उसकी इंग्लिश में टू लगाना है. That's it. Okay. Now Neelam ma'am will explain with example, with video. Okay. Now I am
Stopping here. Yes. Yes. It is all about uh, foundation, मजबूरी, मजदूरी नहीं, मजबूरी. Mhm. Okay. Hmm. Yes. मैम लाइट आ गई? Yes, sir. Okay. Now I request all to come on the video so that we can discuss. जब हम बिना वीडियो के देखते हैं ना तो फिर भी आ जाता है, जब हम वीडियो से देखते हैं तो कुछ और ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है. मीनाक्षी मैम. Yes. Okay. Now Neelam ma'am is a host of this session, Foundation, and she is going to explain one by one. All will be teacher, I will be student. First, Mhm. Neelam ma'am. Yes, sir. Today's session is about to na ni ne rule. That means you use for any you have suppose you have to do any work, but your uh, choice is not to do work. So Under pressure. Under yes, pressure. Hmm. it's compulsion for you. You have to read this book. Hmm. I don't want to read this book because, and someone say it's you have to read this book. So we have to use here have to means हमें वहां करना होगा have to use जहां मुझे If, मेरी if, इच्छा से कोई वर्क नहीं करना है, दूसरे hmm, की इच्छा से कोई वर्क करना है. right. If you don't do it, you will stand a great loss. Yes, sir. Hmm. Uh, and in na ni ne suppose one time na come you have used to here. Hmm. मुझे करना है I have to. Hmm. और अगर टू टाइम ना यूज सेंटेंस में आता है सपोज मुझे Hmm. अ, खाना बनाना है. Hmm. आई हैव टू मेक फूड. आई हैव टू मेक टू कुक फूड. इसमें एक खाना वो एक्शन वाला नहीं है, वो खाना फूड हो गया. ओके, हाँ हाँ यहाँ पे ठीक. एक्शन वाला चाहिए, है ना? हम्म. हम्म. और सपोज है कि मुझे जैसे मुझे खाना बनाने जाना है, ऐसा हो हाँ. सकता है. हम्म. और थ्री टाइम आएगा तो भी आप वहाँ टू के साथ में एक्शन यूज करेंगे. ओके. ना के लिए क्या एग्जाम्पल था? आई हैव टू गो, मुझे आई हैव जाना टू. है. नी के लिए? मुझे इंग्लिश सीखनी है. आई हैव टू लर्न इंग्लिश. ने के लिए? मुझे आम खाने हैं. आई हैव टू ईट मैंगोज. टू टाइम नानी ने? टू टाइम के लिए था मुझे क्रिकेट खेलने जाना है. आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट. थ्री टाइम? मुझे इंग्लिश बोलना सीखने जाना है. आई हैव टू गो टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश. फोर टाइम? स्पीक इंग्लिश. फोर टाइम के लिए था मुझे अंग्रेजी बोलना अ, और लिखना सीखने जाना है. I have to go to learn to speak and to write English. नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Yes, sir. ओके. अजय सर, नाउ यू आर टर्न. हाउ विल यू एक्सप्लेन? Yes, sir. Today we will learn. Sorry. Today we learn uh, has to, have to, had to topic in which we use to um, uh, um, before the action, just like go, we use to go. We use come, then we use to come because uh, in Hindi pronunciation, in any verb, मतलब किसी क्रिया के अंत में
ना नी ने आएगा और वहां पे कंपल्शन और मजबूरी का सेंस होगा, तो वहां पे हम वो एक्शन वो से। काम करना है, दबाव हाँ। है, मजबूरी है और इच्छा ना हो तो भी करना है। हम्म। और अगर उस चीज को नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाए। हम्म। ओके। एक चीज और नोट करें आप सभी, दबाव हिंदी में नोट करें, बाद में इंग्लिश में बता देंगे इसको। दबाव मजबूरी, दबाव मजबूरी, अनिच्छा, मतलब इच्छा ना है तो उसके कहते हैं अनिच्छा, 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 अनिच्छा। यानी आपको उस काम करने का किसी का दबाव हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, आपकी इच्छा ना हो तो भी उस काम को करना पड़ता है। और अगर आप वो काम न करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखो, न करने पर नुकसान, न करने पर नुकसान। तो उसके लिए इस टॉपिक का यूज करेंगे हैव टू और हैज टू का। ओके। अजय सर कंटिन्यू। आप एग्जाम्पल भी बता दें कि ना का एग्जाम्पल ये था, नी का एग्जाम्पल ये था, आप हिंदी में बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मतलब सर जितना अपन को इम्पोर्टेंट टू यूज करना है हर वर्ब से पहले, उसमें अगर ना नी ने आ रहा है तो, और इस सेंटेंस में हैव हैज और हैड भी आएगा ही आएगा, तीनों। वो वो पास्ट में। पास्ट की मजबूरी हो गई, फ्यूचर की भी मजबूरी हाँ। होगी, वो सेम हम्म। रिपीटेशन हो जाएगा, हैड टू आ जाएगा और विल हैव टू आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। हम्म। लेकिन प्रेजेंट में यस सर। हैज टू हैव टू आएगा। यस सर। तो इसमें सर जैसे एग्जांपल है, एक वन रिपीटेशन वाला है, मुझे आना है, आई हैव टू, सॉरी मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और उसे जाना है, ही हैज टू गो। और इसमें जैसे दो रिपीटेशन वाला है, मुझे अंग्रेजी ना बोलनी लिया, है। अब नी का एग्जाम्पल लो, सिस्टम से चलो, ना लो, हाँ। फिर नी लो, फिर ने लो, फिर दो बार नानी लो, फिर तीन बार नानी ने लो, फिर चार बार लो, तो उससे हाँ। एक हाँ। प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। यस सर। नी रिपीटेशन वाला है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। फिर ने रिपीटेशन वाला है, आई मुझे आम खाने हैं, आई हैव टू ईट मैंगोज। हाँ। अब है दो रिपीटेशन वाला, जिसमें ना नी ने में से कोई दो बार रिपीट हो रहा है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। और अब है तीन रिपीटेशन वाला सेंटेंस, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। और फिर ठीक है। वो चार रिपीटेशन वाला जो है, वो स्टार्टिंग में जो था वो, कि आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक एंड राइट, टू एंड लर्न। सॉरी, टू गो टू लर्न टू स्पीक एंड टू राइट इंग्लिश। ठीक है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो क्या बनेगा? मुझे अंग्रेजी सीखनी है, हाँ। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। तो आप एक काम करें, इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बना लें, आई से लेके शाम तक लिख लें, और आई से देर तक हैव टू लिखें, और ही से नीचे तक हैज टू लिखें, और बीच में एक्शन डाल दें कोई। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सर ठीक है। अनिच्छा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वो अनविलिंगली, हाँ, अनविलिंगली, अनविलिंगली। अनविलिंग। प्रेशर मतलब दबाव, मजबूरी मतलब फाउंडेशन कम, है ना? और अनिच्छा अनविलिंगली। ओके। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड से। आई से दे तक हैज टू लिख लो, हैव टू लिख लो, और ही से वहां तक हैज टू लिख के बीच में एक्शन डाल दो। हो जाएगा या फिर बनाऊं यहाँ पे? हो जाएगा। हो जाएगा। और पास में एक हिंदी का सेंटेंस डाल देना, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। ठीक है।
इसका इसका एक और सेंस हो सकता है, मुझे बोलना पड़ता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सेंस भी डाल लेना। कई लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं, जैसे मुझे जाना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता है, तो उसमें भी आपकी मजबूरी शो हो रही है। राइट, जाना है या जाना पड़ता है, दोनों सेंस। ठीक है। अब अब आप वो सेंटेंस, हाँ मीनाक्षी मैम आप बता दें फटाफट सेंटेंसेस, तो उसके बाद आगे चले। वो पेज नंबर निकालो आप, हैज टू हैव टू वाले सेंटेंसेस कहाँ हैं बुक में? ओपन दैट बुक। सही ऐसे बनाया स्ट्रक्चर, ये ठीक बनाया, देखो। कहाँ आपने ग्रुप में भेजा, व्हाट्सएप पे? ग्रुप में डाल दिया। हाँ व्हाट्सएप पे भेजो आप ग्रुप में। हाँ, ये सीखना है के ऊपर बीच में एक एक्शन डालो ना, स्पीक, लर्न, LEARN, लर्न है ना। यहाँ पे हेड टू नहीं लिखना है, यहाँ पे हैज टू लिखना है। हैज टू, सॉरी। हैज टू, ठीक है। जी हेड सर। टू करोगे तो पास्ट की मजबूरी हो जाएगी, जी जी सीखना था हो जाएगा। राइट, जी सर। वहां पे हैज टू कर लो और बीच में एक्शन डाल लो, स्पीक या लर्न। जो सीखना लिखा तो लर्न लिख लो आप। ओके, हाँ जी। वो सेंटेंसेस कौन से नंबर में थे आपके, बाउंडेशन वाले? एडमिट चेक। देखो पहले टेंस होंगे उसमें, फिर मॉडल्स होंगे, ऐसे कुछ पेज टर्न करके। I'm not getting. ओके, लेट मी चेक। सर 168 पे। 168, open the page number 168 everyone. I will also share the screen here. Hmm. 168. यस सर। Yes. Hmm. That's right. Yes. First sentence, मीनाक्षी मैम नानी ने का एक्सप्लेन करेंगे आप या फिर आगे स्टार्ट करें? जहाँ पे एक ना आएगा वहां पे एक हैव टू, जहाँ पे 2 टाइम्स आएगा वहां पे 2 टाइम्स 2 आएगा, जहाँ पे 3 टाइम्स आएगा वहां पे 3 टाइम्स 2 आएगा, और 4 टाइम्स आएगा तो 4 टाइम्स 2 आएगा। वो 10 टाइम्स आएंगे तो 10 टाइम्स आपको टू लगाना है। ठीक है, यस। ओके। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर। नाउ विजिबल? Yes. The first is one by one you have to make. Has to and have to. यहाँ पे मजबूरी है, प्रेजेंट की है। अजय सर, मुझे अकेले खाना पकाना पड़ता है। मुझे अकेले खाना पकाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड अलोन। गुड। आई हैव टू कुक फूड अलोन। यहाँ पे हैव टू को प्रेशर डाला जाता है, कैसे? आई हैव टू, राइट, हैव टू, इस तरह से प्रेशर डाल के बोलते हैं उसको। यू हैव टू डू इट, ही आई हैज हैव टू टू डू इट। कुक फूड अलोन। ओके, नेक्स्ट, नीलम मैम, मुझे पानी भरना पड़ता है। I have to store water. I have to fetch water, or you can say I have to store water. मीनाक्षी मैम, हमारे ऑफिस में हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ये भी हमारी मजबूरी है।
In our office, we नहीं, पहले आप उसको ट्रांसलेट करो, हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है। इन आवर ऑफिस लास्ट में लग जाएगा। okay. We have to speak in English इन आवर ऑफिस। in our office. Yes. ओके, यस, ये मजबूरी खतरनाक है, 4 नंबर वाली। हाँ। अजय सर, यस सर। मैम तो नहीं है आपके सामने? नहीं सर, वो बाहर गए हैं। ठीक है, आप बोल दो जोर से। कभी कभी मुझे दारू पीनी पड़ती है। आई हैव टू ड्रिंक। नहीं 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 नहीं, ड्रिंक सॉरी, कहाँ लगाना है? दारू पीना पूरी वर्ड पे बूज। कभी कभी, अच्छा, बूज। ओके, आई हैव टू बूज समटाइम्स। समटाइम्स। सो अजय सर, डू यू हैव टू बूज समटाइम? नो सर। बट यू आर इन सेइंग दैट आई हैव टू बूज समटाइम्स। हैड सर, इसमें आई हैड टू बूज समटाइम्स। ओके, मैम, नीलम मैम। Yes, sir. I have to go. जोधपुर जाना पड़ता है। I have to go uh, to Udaipur in a week. वंस इन अ वीक। हाँ, once in a week. और सप्ते में 2 बार है तो ट्वाइस इन अ Twice वीक। in a week. महीने में 1 बार है तो वंस इन अ A मंथ। month. साल में 1 बार है तो वंस इन अ ईयर। साल में 2 बार है तो ट्वाइस इन अ ईयर। ओके, सो आई हैव टू गो उदयपुर वंस इन अ वीक। अब नेगेटिव, नेगेटिव में डोंट और डजंट का यूज करना है। डोंट हैव टू, डजंट हैव टू। यस। सर नेगेटिव में तो कोई कंपल्शन हो ही नहीं रहा है, ना कोई मजबूरी है। देखो, नहीं है, लेकिन नेगेटिव में बनाना, आपको ये नहीं करना है, मतलब आपकी मजबूरी नहीं है। ठीक है, अभी आप मेरी बात सुनो कि जैसे आपको, आपके फादर आपको बोले आपको शादी में नहीं जाना है, मतलब आपकी कोई मजबूरी नहीं है, मैं अटेंड कर लूंगा, यानी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है वहां। हम्म। राइट। यस सर। अब उसका टाइप 2 हो गया, उसका नेगेटिव में आपको यूज करना है, एक स्ट्रक्चर बनाओ इसका, डोंट हैव टू, डजंट हैव टू। क्या स्ट्रक्चर बने इसका? डोंट हैव टू और डजंट हैव टू। Doesn't. लिख लो वहां पे शॉर्ट में, आई डोंट हैव टू, ही डजंट हैव टू, तो आपको दिमाग में आ जाएगा। आई डोंट हैव टू, ही डजंट हैव टू। तो डजंट आया तो हैज टू नहीं करेंगे, वो हैज को हैव में चेंज करना पड़ेगा, डजंट हैव टू। हम्म। ठीक है, हुज टर्न इज दैट? Meenakshi ma'am. यस, मीनाक्षी मैम। मेरे ऐसे भाई को कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं जाना पड़ता। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है, दोनों मजबूरी बताता है। Doesn't have to go. आई 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 डोंट हैव टू डू समथिंग डू एनीथिंग। एनीथिंग। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके, यस सर। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट। मेरे मेरे भाई को, भाई को ऑर्डर के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है। हम्म, माय ब्रदर डजंट टू गो हैव टू एनीवेयर। कहाँ गया? डजंट हैव टू। हाँ, माय ब्रदर डजंट हैव टू ग्रो हैव टू गो एनीवेयर फॉर ऑर्डर टेकिंग ऑर्डर। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट। माय ब्रदर डजंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर ऑर्डर, यानी कि सारे ऑर्डर वहीं आ जाते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट। मुझे किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है। आई डोंट हैव टू टेल एनीथिंग टू एनीबडी। टू एनीबडी। आई डोंट हैव टू से और टेल कुछ भी लगा सकते हैं। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग टू एनीबडी। क्लियर? ये सेंटेंस हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जब सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है हाँ बिल्कुल सर। तब इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने का मतलब ये है। ओके, तो आई थिंक खत्म हो गए होंगे सेंटेंस, राइट? हैव टू एस्ट वाला है कुछ? हाँ, दो और है 169 सर का है। हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करने को कहते हैं इंग्लिश में टॉयल। ओके, एक तो होता है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड में एक नॉर्मल मेहनत होती है और उससे भी कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, उसे कहते हैं टॉयल। Whose turn is that? नहीं करनी पड़ती है। आई डोंट मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आई डोंट हैव टू टॉयल। बस बन गया सेंटेंस। बहुत ज्यादा मेहनत करने का पूरा वर्ड है टॉयल, राइट? आई डोंट हैव टू टॉयल। लास्ट सेंटेंस इज हियर फॉर टुडे। मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता है। Whose turn? Please make fast. So I Ajay, say your don't whose turn? माय टर्न। Yes, go अजय ahead. सर। ओके, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता है। आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। Okay. So what is the task for today? आपको अपनी मजबूरी सोचनी है. Okay. You have to think about your foundations today. Okay. I have to go school. I don't have to. I have to. I don't have to. He has to. He doesn't have to. Okay. क्या क्या प्रैक्टिस करना है? I have to. I don't have to. He He has has. to. He doesn't have to. क्लियर? मुझे कल 20 सेंटेंस चाहिए। 20 अजय सर के चाहिएंगे, 20 मैम के चाहिएंगे, 20 आपके चाहिएंगे मैम। ओके, जिसमें 10 सेंटेंस हैज टू के होंगे और 10 हैव टू के होंगे। इसमें 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। Okay. आई के 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव और ही के 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। और सेंटेंस क्रिएटिव चाहिए, क्रिएटिव जो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट हो, राइट? एनी डाउट? No, sir. नो सर। So that's it. Today we are going to wind up this session. We'll meet tomorrow with 20 sentences. Okay? All the very best. थैंक यू सर। Okay. Good night.